Hello and welcome to Sriram Science. You are watching the PYQ series which we discuss every night at 11, and in this video what we do is we basically take the PYQs which were asked by UPSC in its mains previous years, and in economy section we have already discussed all the PYQs of 2024. Now we will be shifting to 2023, and for 2025 there has been already an entire discussion for all the questions which were asked in 2025 के मीन्स उनका पूरा डिस्कशन अपलोड हो चुका है हमारी ही चैनल पे यूपीएससी प्रेप आईएएस। नाउ उस डिस्कशन को जाके आप देख सकते हैं, सिंगल वीडियो फॉर ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, हम 2024 के बाद अभी 2023 पे शिफ्ट होंगे। हमारा जो आज का क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज अबाउट द फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी। सो इट सेज दैट if you want faster economic growth, you require to increase the share of MSMEs or manufacturing. You require to increase the share of manufacturing in GDP. Therefore, you should be knowing the prima facie of this question is that you should at least know what is the current share. If you know what is the current share, then only you can introduce this question rightly. That is the proper introduction of this question, particularly of MSMEs. Now you also need to know one more thing, that is in this manufacturing sector how much is the share of MSMEs. That once you understand first what is the share of these, what is the share of manufacturing sector in GDP. Second, you need to understand what is the share of MSMEs in manufacturing sector. इसके बाद comment on the present policies of the government in this regard. What are the current policies of government in this regard? You need to see that. So basically बहुत simple सा question है. अब इस question को introduce कैसे करेंगे? So we will start with introduction, और introduction में हम क्या लिखने वाले हैं? बहुत simple सी चीज़ कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जीडीपी में शेयर कितना है। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में शेयर इज अराउंड 16 to 17%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही हमारे जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन देता है, इट एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 12% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। उसके बाद क्या लिखना है, दैट इज इट एक्चुअली चेंजिंग और नॉट। एंड ये क्या बोल रहा है, फॉर योर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। फ्यूचर में अगर आपको फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो आपको ये देखना है कि पास्ट में ये किस ट्रेंड के साथ ग्रो किया है। सो यू विल राइट दैट फ्रॉम 1991 रिफॉर्म्स दिस ग्रोथ हैज मेजरली बीन स्टैग्नेंट। ठीक है, विच विल, ये क्यों लिखेंगे हम, बिकॉज इन ऑर्डर टू शो दैट हमें पता है ग्रोथ का पूरा ट्रेंड कैसा चला है। इट हैज बीन मेजरली स्टैग्नेंट एंड नाउ इफ यू वांट पर्टिकुलर सेक्टर दैट इज MSMEs टू वर्क इन दिस मैन्युफैक्चरिंग शेयर, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, you need to understand that this stagnation of manufacturing sector needs to be changed. Now how will we change it? We need to see what is the current share of MSMEs. MSMEs alone contribute around 45% of this manufacturing output. ठीक है, so 45% of this manufacturing output is being provided by MSMEs. Therefore these MSMEs become important. These MSMEs are now important for India to achieve its goal of $10 trillion economy. अगर ऐसा है तो what should we do? So what are the government policies for this? Now the question says that comment on the present policies of the government. In order to comment on anything you need to understand. comment करने के लिए आपको क्या जरूरत है? पहला आपको रियलिटी पता हो, दूसरा आपको यह पता हो उसके पीछे प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, और आप लास्ट में उसको सॉल्यूशंस भी दे दें। ठीक है, दैट इज व्हाट वी नीड टू कमेंट ऑन दीज गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, दैट वी आर इंसेंटिवाइजिंग दीज MSMEs. हाउ आर वी इंसेंटिवाइजिंग दीज MSMEs?
And why should we incentivize an MSME? Because its size is small. We want to turn these MSMEs into big giants. And अगर आपको ये बनाना है that आपको MSMEs को convert करना है into big giants, so that their share increases, so that the share of manufacturing sector increases. Because then only they will have economy of scale, then only they will have strength, then only they can accumulate more capital, they can get investment from outside, then only they will turn bigger. Understood? That is simple. Now, why do we need to do this and कैसे कर सकते हैं? हमारी जो आज की policies हैं, we are providing exemptions from labor laws. हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स सेट किए हुए हैं. पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जिसके अंदर पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या बोलती है कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई भी चीज प्रोक्योर करनी है तो दे विल प्रेफरेबली गिव ट्रीटमेंट टू MSMEs मोर. वी ऑल्सो हैव इंट्रोड्यूस्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम. अब ये क्रेडिट गारंटी स्कीम और GST कॉम्पनसेशन स्कीम जिसके अंदर उन कंपनीज को, उन MSMEs को रखा गया जिन्होंने GST रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए. अब अगर ये सारी स्कीम्स सही से काम कर गई, ठीक है, अगर ये सारी स्कीम्स सही से काम कर गई तो देन वी कैन टर्न दीज इनटू बिगर जायंट्स. We will utilize, or we will have optimum utilization of resources. We will have economies of scale. ठीक है, we can generate more jobs and dividend also. But problem is, what if this remains a dwarf? What if the MSME remains a dwarf? That is, its growth is not increasing. It is also, its growth is stagnant. The growth of MSME is stagnant for 10 years. That it is existent, it is working, but it has only 100 people in it as working. अगर ये बस 100 लोग को ही एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर ही नहीं रही है ये MSME, और ये बिगर स्टेप नहीं ले रही है, ये बड़ी नहीं हो रही है, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. और अगर ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? व्हाट आर द रीसेंट चेंजेस व्हिच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड? एंड जो अभी रीसेंट मोस्ट डेफिनेशन आया था MSMEs का, दैट टॉक्स अबाउट दैट दीज MSMEs विल बी डिफाइंड बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर, बेस्ड ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटीज. अब इन सब चीजों को किसने रिकमेंड किया था? और अगर आपको पता हो दैट यूके सिन्हा कमेटी, ठीक है, यूके सिन्हा कमेटी वाज बेसिकली फॉर्म्ड फॉर दीज ओनली, एंड इट सेड दैट हमारे पास होना चाहिए एक नेशनल काउंसिल. एंड व्हाट विल दिस नेशनल काउंसिल डू? This national council will facilitate MSMEs. It will facilitate credit for MSMEs. It will facilitate the implementation of the new definitions, and it will turn these MSMEs into the ventures of growth. Further, इसकी जो recommendations थी, इन recommendations में क्या लिखा गया था? कुछ और चीजें जिसकी वजह से हम MSMEs को grow कर सकते हैं. That we need to give incentivization थ्रू PLI स्कीम. PLI स्कीम से हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, बिकॉज इंडिया हैज रिसेंटली टर्न्ड आउट टू बी द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लेस. ठीक है, लैंड एक्विजिशन एंड अदर प्रॉब्लम्स. लैंड एक्विजिशन जो कि अभी इस साल भी क्वेश्चन आया था. इस साल क्वेश्चन क्या आया था 2025 में कि PLI स्कीम की अचीवमेंट्स बताओ, PLI स्कीम ने क्या क्या हासिल किया और इसमें फर्दर क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं, इसको और ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं. दिस PLI स्कीम हैज़ प्रॉब्लम्स. और कौन सी प्रॉब्लम है? लैंड एक्विजिशन,
एसईजेड जोन्स में प्रॉब्लम्स है, चलो एसईजेड को तो छोड़ दो, लैंड एक्विजिशन के साथ साथ लेबर लॉज की प्रॉब्लम है, दैट फर्म्स आती बाहर से, वो यहां पे इन्वेस्ट करती, बट दे आर बेसिकली इन्वेस्टिंग इन सर्विस सेक्टर, नॉट इन द लेबर सेक्टर, ठीक है, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज दे आर फेसिंग क्रूशल एंड आई कैन से दैट देयर इज स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ लेबर लॉज, ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक. Second recommendation which this committee gave was SEZs, and it said that it recognized that SEZs have been able to create more than 2 million jobs, ठीक है, 2.5 million jobs बनाए हैं SEZs ने, बट वहीं पे अगर आप देखें SEZs have been only 2.5 million jobs, but they are only exporting 26% of the exports belong to SEZs. हाँ ठीक है, अकाउंट फॉर ओनली 26% ऑफ द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. सो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट अगर आप एसईजेड बना रहे हो तो इट शुड बी इन दी एक्सपोर्ट सेक्टर, इट शुड प्रमोट एक्सपोर्ट्स, दैट इज हाउ यू विल अर्न मोर, दैट इज हाउ यू विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज व्हाई इट वाज हाईलाइटेड बाय बाबा कल्याणी कमिटी. हाँ, इट वाज हाईलाइटेड बाय बाबा कल्याणी कमिटी that SEZs actually failed in India, while as if you compare them with their counterparts in China, it has been a more successful model in China. ठीक है, so that is how you will answer this question. फर्दर हमारे पास बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एमएसएमई सेक्टर को ग्रो करने के लिए, लाइक फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, वोकल फॉर लोकल. दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स व्हिच गवर्नमेंट हैज taken, and we have recently also introduced, and UPSC rightly asked a question on that, the consolidation of 4 labor codes, and GS3 में ही ये क्वेश्चन आया था 2022 में कि ये जो 4 लेबर कोड्स है, 2024 में आया था क्वेश्चन, 2024 में आया था क्वेश्चन 4 लेबर कोड्स, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं. 4 लेबर कोड्स जो है उसके बारे में क्वेश्चन आया था, दैट हाउ आर दे टर्निंग इंडिया इनटू समथिंग न्यू. नाउ विद दिस क्वेश्चन हमें लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 चीजें, ठीक है. So there should be a suggestion, there should be 2 suggestions which should be given or 3 suggestions. First is कि आपको SEZs के लिए अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर बढ़ाना है जीडीपी में, तो आपको SEZs में जो बाबा कल्याणी कमेटी इसकी रिकमेंडेशंस है उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए. अगर आपने एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ चाहिए, अगर आपने एमएसएमई सेक्टर का शेयर बढ़ाना है, तो यू शुड इंप्लीमेंट यूके सिन्हा कमिटी रिकमेंडेशंस, ठीक है. विद दिस ओनली यू कैन इंश्योर दैट इंडिया विल टर्न इनटू एन इकोनॉमी विच विल बी रियली पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ठीक है. एंड देन ओनली यू कैन सी दैट हाउ इंडिया इज एस्पायरिंग फॉर बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047. तो ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए, ये गोल्स अचीव करने के लिए आप राइट आप रिकमेंडेशंस दो और राइट आप स्टेप्स लो, देन ओनली यू विल बी एबल टू get to the goal which eventually we all have to get to, that is developed India, Viksit Bharat by 2047. With this we conclude today's discussion of this question. Thank you once again for being here. Jai Hind.